what is your objective of doing this course? We'll start with you. Good morning, my name is Sarika Kher and I am learning coding stack to development Rahul sir is teaching us development. Okay. So what is your objective? Why are you doing this course? I am doing this course because I wanted to learn the development. So I myself currently working there. I'm running the from the around 2 years of learning from the coding tutor. Myself, I'm learning digital marketing. My aim is to know how to use work digitally to grow online. Good morning, sir. My name is Gaurav Yadav. Currently, I am doing my final year in computer engineering from the SOC and also doing my course as a stack developer under Rahul sir. So my goal is to be placed as a web developer in MNC or any. Great. I'm doing the full stack development course. I'm not doing this course because I want more skills. I want to implement in my life. Grow myself. Hello sir, my name is Saini Khanne. I am currently in final year of BTech Computer Engineering. I am doing one stack course from Rahul sir. The objective of this course is to learn the web development and develop interactive website and to get a good job in MNC. Thank you. Good morning, sir. My name is Hitesh Gopale and I am currently pursuing BA degree in PhD college, and I am currently doing course at AppTech of stack development. Rahul sir was teaches us, and my goal is to get a job in a reputed company. तो इंटरव्यूअर जो बंदा उधर बैठा है वो क्या देखता है? जो आदमी इंटरव्यू करने वाला वो क्या देख रहा है? This is your understanding of the subject. कि अगर आपने बोला कि मैंने ये सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट लिया है तो भैया आपके सब्जेक्ट में क्या ज्ञान है आपके पास बताइए, तो उसके ऊपर से और पूछेगा ना, बिकॉज दैट इज the role you have applied for and that is the course you have done and that is the job opening there. So he is going to ask you questions related to that particular job. What is your preparedness for that? Do you think that if you go for a job और सब आपने सब एक particular course आपने वही course join किया, do you think you will all appear in the same manner in the interview? आपको लगता है कि सब जो ये जवाब देगी वही ये जवाब देगा, वही ये जवाब देगा, वही ये जवाब दे पाएगा? क्यों अंतर आएगा? कोर्स आपने वही सीखा, जो आपका राहुल सर सिखाएगा वो ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा सिखाएगा इसको कम सिखाएगा, वो तो उतना ही सिखाएगा ना। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब इंटरव्यू का टाइम आता है, somebody gets selected, somebody does not get selected, तो उसका कारण क्या होता है? हाँ जी? Of what? Concept. तो I come back to my first question कि आपकी एफर्ट कितनी है? ठीक है ना? आपकी एफर्ट होनी चाहिए कि भैया अगर मैं I am paying X amount, am I getting that value from that faculty? Am I getting value from that course who the person who is teaching me that course? अगर मेरी एफर्ट नहीं है तो फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट दैट बिकॉज यू हैव जॉइन्ड अ पर्टिकुलर कोर्स एंड यू हैव जॉइन्ड अ पर्टिकुलर ब्रांड तो नौकरी आपकी 100% हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू द पर्सन हु इज गोइंग टू इंटरव्यू यू and the answers you give at that particular point of time. ठीक, दो चीजें होती है, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है कि आप सवाल कैसे जवाब देते हैं, और दूसरा होता है आपका पर्सनालिटी, आपकी तैयारी क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है ना? क्योंकि एक होता है मुझे जवाब देना आता है, मुझे जवाब मालूम है, लेकिन जवाब कैसे देना वो मालूम नहीं है। अंडरस्टैंड दैट? आई नो द आंसर बट आई डू नॉट नो हाउ टू डिलीवर द आंसर। ठीक, तो दैट्स लाइक एग्जांपल मैं बताऊं कि आप सब मराठी है, मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मैं मराठी में कुछ बोलने की कोशिश करूंगा आप लोग हंसे क्योंकि मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे जवाब मालूम है कि जवाब क्या है, लेकिन मैं मराठी में बोलने की कोशिश करूं तो मुझे नहीं डिलीवरी आएगी। ठीक, तो दैट इज द एग्जैक्ट थिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट द कांसेप्ट, द आंसर टू द पर्सन हु आस्किंग द क्वेश्चन, यू आर गॉन, यू माइट बी वेरी ब्रिलियंट बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। So, more than doing the course and more than anything else is your preparedness. What is the effort you are putting into it? क्या हमारी तैयारी क्या है?
आपने ये कोर्स किया, इसने ये कोर्स किया, उसने भी कोर्स किया, कल सब अलग अलग कंपनी में प्लेस हो जाएंगे। इसको समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, 30,000 मिला, इसको 40 मिला, आपको 25 मिला, क्यों? कोर्स तो आपने सेम किया था, फीस भी सेम पे किया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव अटेंडेड दैट सेशन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर प्रिपेयर्डनेस। हमारी तैयारी क्या है? आप सबने एक कोर्स में आपने एडमिशन लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका इवैल्यूएशन करते हैं फैकल्टी। Will you all score, say example, a paper out of 40? Will you all score 35 out of 40? Will you all score 40 out of 40? नहीं ना, कोई 20 में होगा, कोई 40 में होगा, कोई 35 में होगा, कोई 36 में होगा। उसका मतलब क्या होता है? What does that mean? That is the concept, understanding that कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क आ रहा है। 50 में से अगर इसका 35 आ रहा है और मैडम का 40 आ रहा है, तो there's an understanding problem there only. आप जब आप स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सब क्लास का एक ही रिजल्ट आता था, जो पेपर होता सबका एक ही रिजल्ट आता था, नहीं ना? तो वहाँ क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग। कोई एकदम ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, ए ग्रेड वाले आते हैं, फिर बी ग्रेड वाले आते हैं, फिर सी ग्रेड वाले आते हैं, फिर फेल वाले आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? ठीक, the same thing happens when you are grown up. जो क्रीम है वो कंप्लीट उठा लेती है कि भैया ये मेरे काम के बंदे हैं, लेकिन जो बाकी बच गए, टुडे इफ यू स्कोर एग्जांपल, आपने बीकॉम किया कहीं से, इन्होंने 99% स्कोर किया और आपने 65% स्कोर किया, ठीक? आप क्या वो स्कूल को जाके गाली देते हैं कि इसने मुझे कम मार्क्स दिए? आप वो बोर्ड को गाली देते हैं कि इससे मुझे बोर्ड अच्छा नहीं है? करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते ना। जो आ गया सो आ गया, ठीक? और आपने पूरी जिंदगी वो बोर्ड में निकाल दिया, एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन पूरा उधर वो कर दिया, ठीक? आपने कभी वो बोर्ड को कोई उंगली नहीं उठाई। यहाँ पर आपने एक 6 महीने का कोर्स किया और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप मैडम को पकड़ेंगे क्या क्या एजुकेशन है, हमको नौकरी नहीं मिल रही। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि पूरे आपने 15 साल वहां लगा दिए, आपने उधर एक उंगली नहीं उठाई, और यहाँ 6 महीने का कोर्स किया आपने, 3 महीने का कोर्स किया या 1 साल का कोर्स किया, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप उंगली उठाएंगे, ये एपिक अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ ज्वाइन किए हैं, जो फैकल्टी और फैकल्टी सबको वैसे ही डिलीवरी करेगा, जो इनको किया, आपको किया, आपको किया। आप उसमें से कितना निचोड़ लेते हैं, आप घर में जाके कितना होमवर्क करते हैं, बिकॉज आपकी प्राइमरी सेकेंडरी की उम्र चले गई है। अभी आपकी नेक्स्ट फेज इज योर गोइंग टू योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ यू हैव टू गेट सीरियस इन योर व्हाटएवर यू आर डूइंग। जो भी आपने प्रोफेशन चूज किया है, अगर आप उसमें सीरियस नहीं हो, यू डू नॉट पुट दैट कमिटमेंट ऑफ 100% इनटू दैट थिंग, देन यू आर गॉन। देन द ओनली चीज एक ही रहती है कि जैसे टिपिकल इंडियन मदर क्या वो बोलती है, अपने बच्चे को कभी उंगली उठाएगी, बोलेगी वो सर अच्छा नहीं था, वो दुनिया अच्छी नहीं, वो नहीं अच्छा, मेरा बच्चा ठीक है। Then that will happen. That you are perfect, everybody else is wrong. So don't get into that mindset. If she is scoring 20 and he is scoring 30 out of a particular paper, then you need to understand that you need to work on it. There's something wrong. I'm not saying everybody will get 50 out of 50, but at least you come into that first rankers. तो तभी आपको बोलेंगे कि हाँ भैया मुझे तो टॉपिक आता है, मेरे क्लास में भी मेरे पेपर्स में भी मैं